We now move into the embryological derivatives of endoderm, ectoderm, and mesoderm. Let's first see how these three germ layers are basically made. So this is the ectoderm here, or the endoderm. The endoderm is if cells invaginate and create the mesoderm. So these are your layers that are part of the gastrulation. The ectoderm, then we have the endoderm, and then in the middle we create the mesoderm with combination of the cells. Alright. Invasive syncytial trophoblast. Inside, the embryoblast was still in an outer invasive syncytial trophoblast. Inside, the embryoblast was still just a simple cluster of cells that we call the inner cell mass. So as weeks 2 through 4 kick off, that cluster starts to actually organize, and that's what this video will be about. So firstly, the cells of the inner cell mass flatten into a continuous sheet, and so it's not too distracting, I'll omit the cytotrophoblast from here on. This sheet splits into two layers, the epiblast above and the hypoblast below, and together they form the bilaminar or two-layered embryonic disc. From there, two spaces take shape, an amniotic cavity forming over the epiblast, and beneath the hypoblast, the primary yolk sac. We talked in our last video about the many functions of the amniotic cavity and amniotic fluid, so if you want a refresher, I'd suggest you go check that video out. Additionally, though it's only temporary, the yolk sac also plays a key role in those first days of nourishment, and it's a little throwback to our evolutionary past. Through gastrulation, this flat two-layer disc transforms into three germ layers, the ectoderm, mesoderm, and endoderm. So why would we dedicate an entire episode to this process? Well, because these layers are the source of every tissue in the human body. Again, we're going to do some cropping to focus on the disc, but remember, the yolk sac and the amniotic sac are still there. Okay, cool. So the first sign of gastrulation is a primitive streak. It's a groove running from head to tail on the epiblast, and note that that's actually the first time I said head or tail because we're finally defining our body's first axis. Epiblast cells stream inward here, pushing aside the hypoblast to form the definitive endoderm. Others ingress through the primitive streak to form the mesoderm, and those that remain at the surface become the ectoderm. The displaced hypoblast cells don't vanish, and they actually go on to line our aforementioned yolk sac. So within the mesoderm, a rod-like structure called the notochord extends from this tiny point called the primitive node. The notochord itself won't become part of the skeleton, but it acts as a signaling line. It directs the overlying ectoderm to thicken into the neural plate, initiating neurulation, the process that ultimately binds the brain and spinal cord. And most of the notochord actually regresses during development, but its remnants live on as nucleus pulposus at the center of our intervertebral discs. So around day 18, the neural plate begins folding inward. It forms a neural groove bordered by raised folds, and over the next few days, these folds rise, converge, and fuse into the neural tube. At the same time, special cells at the crest of each fold break free and migrate, and these are the neural crest cells. Let me emphasize, these are really important. They'll form peripheral nerves, parts of the heart, facial cartilage, pigment cells, and much, much, much more. We'll see them time and again throughout this series, but I just wanted to emphasize that this is where they come from. Meanwhile, the mesoderm cells are also branching into their own distinct regions.
Closest to the notochord lies the paraaxial mesoderm, paraaxial, right along the axis, and it will segment into somites. Just beyond it, the intermediate mesoderm gives rise to parts of the urogenital system, and at the far edges, the lateral plate mesoderm spreads to help form the heart, limbs, and body wall. Don't worry so much about memorizing these right now, since we'll double back over many of these processes in subsequent videos. Hi there, so future Kolob here. And this guy's really good if you guys want to go up and check this video. This is a really cool video. So that was a little bit about how these three pairs come into place. We can see the same thing here. ये epiblast है, ये hypoblast है, ectoderm है, mesoderm है, endoderm है, ठीक है? और फिर organogenesis में हमारे tubes आती है और crest cells आते हैं और वही tube बना देते हैं उसे filtration और part, ठीक है? अब हम आगे चल के देखते हैं कौन सी क्या बनाती है। सबसे पहले हमारे पास एक्टोडर्म है। एक्टोडर्म जो है वो बाहर की चीज़ें बनाती है और ब्रेन बनाती है, ठीक है? स्किन, नर्व, स्पेशल सेंसर्स। मेसोडर्म मिडिल सपोर्ट सारी चीज़ें बनाती है, मसल, ब्लड, किडनी, बोन। एंडोडर्म जो है वो लाइनिंग बनाती है, जीआई ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी एपिथेलियम की, ठीक है? एक ये वीडियो भी देख लेते हैं। The temporary structures that emerges in early development. At the posterior side of the embryo, cells begin to migrate downward and differentiate into various cell types. This movement gives the early embryo a distinct appearance, which we refer to as the primitive strike. The primitive strike is a temporary structure that emerges in early development. At the posterior side of the embryo, cells begin to migrate down, emerges in early development. Now, At the posterior side of the embryo, cells begin to migrate downward and differentiate into various cell types. This movement gives the And we early have embryo holes a at one end distinct appearance, and of which course we the refer liver to as as well. the primitive strike. The primitive strike is a And up temporary here in the structure abdomen as well, that we have the emerges in early pancreas. development. And then, of course, that tube At goes the on to form posterior the side of the esophagus, embryo, the cells stomach. begin to migrate downward Form and some of the layers differentiate of the into skin, various some of the cell inner types. layers. This movement gives They the also early form embryo a muscles distinct appearance, which we refer and to as the bones. primitive strike. The primitive And that strike is a includes the temporary cardiac structure muscle as that well. emerges in early development. At the And posterior then side tucked of away the down here in the embryo, abdomen and cells pelvis, we begin to have the migrate kidneys downward and differentiate into various and cell the bladder. types. This movement gives the early And our embryo a ovaries distinct or appearance, testes. which we refer to Moving as on the to the primitive ectoderm. strike. The primitive strike you is might a suspect, the temporary ectoderm structure forms that emerges the in outer early layer of skin. development. At the posterior side of the embryo, cells begin And to it also migrate forms downward and skin-related items differentiate like into sweat various cell glands types. This movement and gives the hair. early embryo a distinct But interestingly, appearance, in which we addition to refer skin as and the hair and primitive glands, strike. the The primitive ectoderm strike also is a forms our temporary nervous system. structure that emerges in early development. At the posterior side of the embryo, cells begin So to just to migrate recap, the downward endoderm and forms differentiate our into various cell gastrointestinal and types. This movement gives the early embryo a distinct appearance, which we refer to as the primitive strike. The primitive strike is a temporary structure that emerges in early development. इस इमेज में हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, ये वाला इमेज, इसमें हम ये देख रहे हैं कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कराते हैं, ठीक है? जो एक्टोडर्म है ना, वो आपकी ये रैथकेज पाउच बनाती है, ठीक है? एंड दैट बेसिकली ग्रोज डाउन इन द एम्ब्रियो। एक्टोडर्म जो है वो ऊपर वाला पार्ट था ना, जब हमने लेयर्स देखी थी तो ये ऊपर एक्टोडर्म वाला पार्ट था, तो ये रैथ के पाउच बनाती है। रैथ के पाउच विल बी अ स्ट्रक्चर दैट गोज डाउन इन द एम्ब्रियो, while the endoderm makes structures that grow up from the gut. एंडोडर्म, इस इमेज में क्या क्या चीज़ें बन रही हैं? थायराइड ग्लैंड है हमारा, ठीक है? और क्या क्या चीज़ है? लंग डाइवर्टिकुलम है, ये लंग डाइवर्टिकुलम है, ठीक है? ये भी एंडोडर्म बनाता है। लंग डाइवर्टिकुलम, लिवर और स्टमक, ठीक है? पैनक्रियस यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, वो भी आपका एंडोडर्म बनाता है। वाइटेलाइन डक्ट, that is also allantois. This allantois is also made from the endoderm. So all these things are basically made from the endoderm. तो ये स्टमक, पैनक्रियस, ठीक है, वाइटेलाइन डक्ट, allantois, ये सारे अंदर वाले स्ट्रक्चर्स आपके एंडोडर्म से बनते हैं। लेकिन ये जो रैथ के पाउच है ये बनता है एक्टोडर्म से, ठीक है? एक्टोडर्म से कैसे बनता है ये देखें, ये इसने रेड में दिखाया हुआ है। ये रैथ के पाउच बनता है, ठीक है? और रैथ के पाउच से आपके पास फर्दर ऑन बनता है एडिनो हाइपोफिसिस, ये रेड कलर से दिखा रहे हैं, ऊपर से ब्रेन का थर्ड वेंट्रिकल आ रहा है। तो ये जो रेड कलर का है एडिनो हाइपोफिसिस, ये किससे बनता है? रैथ के पाउच से, जो कि किस चीज़ से बनता है? आपके एक्टोडर्म से, ठीक है? और एडिनो हाइपोफिसिस बेसिकली क्या होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी होता है।
कभी कभी क्रेनियोफेरेंजियोमा हो जाता है. दिस इज़ अ बिनाइन ट्यूमर ऑफ डिराइव फ्रॉम द रैट के पाउच रेमनेंट्स, और इसमें कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स बन जाते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट द न्यूरो एक्टोडर्म हेयर. सो यहाँ पे जो हमारे पास न्यूरो एक्टोडर्म है, ठीक है, दैट ग्रोज डाउनवर्ड्स एंड बिकम्स द न्यूरो हाइपोफिसिस. ठीक है, ये देखो, ये जो न्यूरो हाइपोफिसिस है दैट इज़ बेसिकली योर न्यूरो एक्टोडर्म. ये नीचे ग्रो करता है और ये न्यूरो हाइपोफिसिस बन जाता है. तो पिट्यूटरी का डुअल ओरिजिन होता है. जो आपका न्यूरो हाइपोफिसिस है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है. ठीक है, और ये डायनसेफ्लॉन भी कहते हैं हम इसको. ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और ये न्यूरो एक्टोडर्म से आता है, न्यूरो एक्टोडर्म से. लेकिन जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एडिनो हाइपोफिसिस, ये आता है जो कि रैथ के पाउच से बनता है. ये कहाँ से आता है? सर्फेस एक्टोडर्म से. ठीक है. अब सरफेस एक्टोडर्म हमारी कौन कौन सी चीज़ें बनाती है. हमने देख लिया कि वो एडिनो हाइपोफिसिस बनाती है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी थी रैथ के पाउच के थ्रू, और इसीलिए क्रेनियोफेरेंजियोमा होता है. उसके साथ साथ ये लेंस ऑफ द आई बनाती है. ठीक है, ये जो सरफेस एक्टोडर्म है ये लेंस ऑफ द आई बनाती है. पहले लेंस प्लेकोइड बनता है, फिर लेंस वेसिकल बनता है. ठीक है, ये लेंस वेसिकल है. तो ये जो है किस तरह बनता है? सरफेस एक्टोडर्म से. द लेंस मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड एक्सपोज टू लाइट इंड्यूस्ड बाय ऑप्टिक वेसिकल. ऑप्टिक वेसिकल क्या होता है? न्यूरो एक्टोडर्म होता है, बट नॉट डिराइव फ्रॉम इट. ठीक है, तो रेटिना जो है वो न्यूरो एक्टोडर्म से बनता है, लेकिन जो लेंस है ना वो सरफेस एक्टोडर्म से बनता है. ठीक है, तो ये जो लेंस प्लेकोइड, लेंस पिट, ये सारा कुछ किस चीज़ से बनता है? सरफेस एक्टोडर्म से. लेकिन जो रेटिना है वो न्यूरो एक्टोडर्म से बनता है. ठीक है. You must remember that this is another thing that there is माउथ की जो ओरल कैविटी है वो सरफेस एक्टोडर्म से बनती है, लेकिन फेरिंग्स ऑनवर्ड जो है वो एंडोडर्म से बनती है. तो द ओरल कैविटी इज़ एन ओपनिंग टू द आउटसाइड, इट्स लाइंड बाय द स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. तो इसलिए वो भी आपकी किस चीज़ से बनती है? सरफेस एक्टोडर्म से बनती है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास एडिनो हाइपोफिसिस है. स्किन टचेस द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. हमने सारी एक्सटर्नल चीज़ें थी आउटसाइड, वो सरफेस एक्टोडर्म से बन रही थी. तो क्योंकि स्किन टचेस द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हमारे पास एपिडर्मिस, हेयर, नेल, सेबेशियस ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड सारे इससे बन रहे हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. हमारे पास अब एक और चीज़, जो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली अभी तक. स्किन सरफेस एक्टोडर्म से बन गई, एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनो हाइपोफिसिस बन गया एक्टोडर्म से रैथ के पाउच के थ्रू, और वो क्रेनियोफेरेंजियोमा का क्रॉस कर रहा था, उसके रेमनेंट्स जो थे. और फिर हमने देख लिया कि ओरल कैविटी की एपिथेलियल लाइनिंग जो है अप अंटिल फेरिंग्स से पहले तक सरफेस एक्टोडर्म से बनती है. और लेंस प्लेकोइड और लेंस वेसिकल भी इसी से बनता है. लेंस ऑफ द आई इज़ मेड फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म. ठीक है. Now the sensory organs of the ear and olfactory epithelium are also made from the surface ectoderm. ठीक है, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल है वो सरफेस एक्टोडर्म से बनता है, और जो अंदर का कान है, इनर ईयर, वो न्यूरो एक्टोडर्म से बनता है, ओटिक प्लेकोइड से बनता है. तो ऑलफैक्टरी एपिथेलियम, जो नाक में ऑलफैक्टरी एपिथेलियम होती है, दैट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम द सरफेस एक्टोडर्म, क्योंकि इट्स डायरेक्टली एक्सपोज टू एयर एंड ओडोरेंट्स. तो ये भी आउटर इन्वायरमेंट से एक्सपोज्ड है इसके सेंसरी सरफेस, तो ये भी एक्टोडर्म से बनता है. Another thing you should know, the anal canal below the pectinate line. This is a very high yield point. हमारे इनर कनाल में एक पेक्टिनेट लाइन होती है. पेक्टिनेट लाइन से ऊपर जितने भी पार्ट्स होते हैं दे आर मेड फ्रॉम द एंडोडर्म, बट बिलो द पेक्टिनेट लाइन all the parts are made from the surface ectoderm. Why below because below the pectinate line it develops from something called the proctodium. The proctodium is basically an ectodermal invagination. क्या कहते हैं हम इसको? proctodium. तो पेक्टिनेट लाइन के नीचे ये proctodium से डेवलप होते हैं ये स्ट्रक्चर्स. क्लिनिकल कोरिलेशन इसकी ये होगी कि यहाँ पे जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है, वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा क्यों हो पाता है यहाँ पे? बिकॉज ये सारे सरफेस एक्टोडर्म से बने हैं. सोमैटिक पेन भी होता है, इन्फीरियर रेक्टर वेसल्स यहाँ पे आपको मिलती हैं. ठीक है. फिर हमारे पास आ जाते हैं पेरोटिड, स्वेट एंड मेमोरी ग्लैंड्स. दीज आर स्किन एसोसिएटेड ग्लैंड्स, सो ऑल डेवलप एज एपिडर्मल डाउन ग्रोथ्स. ठीक है. पैरोटिड जो है वो एक्टोडर्म से बनता है, और सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल एंडोडर्म से बनता है. So basically, if it opens onto the skin, always think ectoderm. Parotid is opening onto the skin, so you're thinking about ectoderm.
तो सरफेस एक्टोडर्म हमारी कौन कौन सी चीज़ें बना रहे हैं? एपिडर्मिस और ग्लैंड्स। ओरल एक्टोडर्म के थ्रू रैट के पाउच जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी बनाना था। आई प्लिकोइड के थ्रू लेंस, सेंसरी प्लिकोइड्स के थ्रू ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम और एक्सटर्नल एपिथेलियम, और प्रोक्टोडियम के थ्रू इनर कनाल बिलो द पेक्टिनेट लाइन. So you can remember if it lines, covers, senses or secretes onto the outside, it's made from the surface ectoderm. ओके अब हम देखते हैं कि न्यूरल ट्यूब के कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं. न्यूरल ट्यूब के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर्स होते हैं बस, ठीक है. तो उसमें हमारे पास ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सीनस न्यूरॉन्स हो जाते हैं. सीनस न्यूरॉन्स के साथ हमारे पास ग्लाइल सेल्स में 3 ग्लाइल सेल्स न्यूरल ट्यूब बनाते हैं. एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एपेंडाइमल सेल्स. साथ साथ में पिनियल ग्लैंड, द वन दैट सिक्रीट्स मेलाटोनिन and it's responsible for your sleep and circadian rhythm basically. पिनियल ग्लैंड भी यहाँ से बनता है. रेटिना और ऑप्टिक नर्व भी, ठीक है. अब हम देखते हैं कैसे. तो न्यूरल ट्यूब की हम वैसे भी फॉर्मेशन देख चुके हैं. नीचे नोडल कॉर्ड है, ऊपर न्यूरल ग्रूव है, उसके ऊपर न्यूरल प्लेट बन जाती है. ये मीसोडर्म के अंदर उसने आपको लैटरल पेट वाले एरिया में सोमाइट्स दिखाए हुए हैं. और फिर हमारे पास एक एंटीरियर न्यूरोपोर होता है, एन ओपनिंग दैट क्लोजेस बाय D24, एंड द स्पाइनल वन, द पोस्टीरियर न्यूरोपोर, द वन दैट इज डिस्टल, क्लोजेस बाय Day26. तो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास न्यूरल ट्यूब जो है वो ब्रेन बनाती है. ब्रेन में हमारे पास प्रोसेंसेफ्लॉन से फोर ब्रेन बनता है, मेसेंसेफ्लॉन से मिड ब्रेन और रोम्बेंसेफ्लॉन से हैंड ब्रेन. फिर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड भी न्यूरल ट्यूब बनाती है. न्यूरल ट्यूब ऑल्सो लुक्स, यहाँ से आप देखेंगे न्यूरल ट्यूब दिखाई हुई है आपको, ठीक है. ये इस तरह से फोल्ड हो रही है. तो न्यूरल ट्यूब जो है वो आपकी ग्लाइल सेल्स की फॉर्मेशन कराती है. सीनस के न्यूरॉन्स भी न्यूरल ट्यूब बनाती है, और एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और अपेंडाइमल सेल्स भी न्यूरल ट्यूब बनाती है. फिर हमारे पास जो रेटिना है ना, रेटिना ऑल्सो इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब. सो बेसिकली ये जो न्यूरल ट्यूब के स्ट्रक्चर्स हैं, ये ऑप्टिक ग्रूव्स के ऊपर वाला जो एरिया है, इट कम्स क्लोज एंड क्रिएट्स दिस रेटिनल एरिया. लेंस जो था वो किससे बन रहा था? सरफेस एक्टोडर्म से बन रहा था. लेकिन रेटिना जो है वो किस चीज़ से बनता है? न्यूरल ट्यूब से बनता है, ठीक है. ये जो नीचे आपकी सरफेस एक्टोडर्म है ना, जो लेंस प्लिकोइड है, लेंस जो है वो सरफेस एक्टोडर्म से बन रहा है, लेकिन ये जो बाकी रेटिना वाला एरिया ना पर्पल कलर का, ये न्यूरल ट्यूब से बनता है. फिर हमारे पास पिनियल ग्लैंड इससे बन रहा था, ये आपकी सर्कैडियन रिदम कंट्रोल करती है. तो दीज आर योर स्ट्रक्चर्स दैट आर मेड फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब. वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू पुट हियर, ये इंपॉर्टेंट है कि एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एपेंडाइमल सेल्स ये न्यूरल ट्यूब से आते हैं, ठीक है. लेकिन एग्जाम ट्रैप ये कि श्वान सेल्स जो है वो इससे नहीं आते, वो न्यूरल क्रेस्ट से आते हैं. और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं वो न्यूरल ट्यूब से आते हैं. दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड नो. श्वान सेल्स जो हैं वो नहीं आते, वो नहीं बनते न्यूरल ट्यूब से, वो न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनते हैं. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है. ऑल्सो रिमेंबर दैट योर न्यूरो हाइपोफिसिस, जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी की एक न्यूरल स्ट्रक्चर है, ये ग्लैंड नहीं है. और ये जो है डेवलप्स एज अ डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द डायनसेफ्लॉन. तो ये जो हमारा डायनसेफ्लॉन है ना, इससे हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनता है. बेसिकली ये स्टोर और रिलीज़ करता है एंटीडायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन. ये हार्मोन्स जो है आपके हाइपोथैलेमस में बनते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टोर होते हैं और रिलीज़ होते हैं. तो एंटीरियर पिट्यूटरी तो रैट के पाउच से बनता था, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपकी न्यूरल ट्यूब से बनता है. अब हम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की बात करते हैं. न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो है ना, ये एक्टोडर्म से बनते हैं. दे आर स्पेसिफिकली मेड फ्रॉम द एजेस ऑफ द न्यूरल ट्यूब. आई विल शो यू हाउ. So look at this. These are basically the edges of your neural tube. जब न्यूरल ट्यूब क्रिएट हो रही होती है ना, नीचे ये न्यूरल फोल्ड्स बन रहे होते हैं. तो ये जो एजेस वाला एरिया होता है, यहाँ से न्यूरल क्रेस्ट बनते हैं. दे डिटैच एंड माइग्रेट एक्सटेंसिवली इनटू मेनी स्ट्रक्चर्स. दे आर मल्टीपोटेंट एंड माइग्रेटरी. तो दे आर लाइक वॉन्डरिंग स्टेम सेल्स, ठीक है. अब इसको याद करने का एक तरीका है मोटेल पास, ठीक है. That's a way to remember all the structures made from the neural crest cells, ठीक है. सबसे पहले हमारे पास, हम एक एक करके समझाते हैं अपने आप को. सबसे पहले हमारे पास मेलानोसाइट्स हैं. मेलानोसाइट्स का काम क्या होता है? पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ द सेल्स होते हैं, ठीक है. इसमें ये मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं. अ डिफेक्ट कैन बी लीड टू एल्बिनिज्म, विटिलिगो और वार्डनबर्ग सिंड्रोम, बिकॉज मेलानोसाइट्स बेसिकली माइग्रेट फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट टू द स्किन, राइट. तो न्यूरल क्रेस्ट से स्किन तक माइग्रेट कर रहे हैं, इसलिए ये मेलानोसाइट्स जो है वो न्यूरल ट्यूब से बनते हैं. फिर हमारे पास ओडोंटोब्लास्ट्स हैं. दीज आर बेसिकली सेल्स दैट फॉर्म द डेंटिन ऑफ द टीथ, नॉट द इनेबल. इनेबल जो है ना टीथ का, वो एक्टोडर्म से बनता है. लेकिन ओडोंटोब्लास्ट्स आर मेड फ्रॉम द
neural crest cells. Any defect will lead to an abnormal dentin formation. Then we have the tracheal cartilage and bronchial cartilage also, which basically explains why neural crest cells affect the airway anatomy, because the neural crest cells contribute to parts of the respiratory cartilage also and the cartilage rings of trachea. तो tracheal cartilage जो होती है और bronchial cartilage जो होती है वो neural crest cells से बनती है, इसलिए neural crest cells का defect जो है वो airway anatomy को भी affect करता है. फिर हमारे पास enterochromaffin cells होते हैं. बेसिकली ये सेल्स हैं GI ट्रैक्ट के, ये सेरोटोनिन सिक्रीट कराते हैं. दे ऑल्सो इंक्लूड इंटेरिक नर्वस सिस्टम कंपोनेंट्स. अगर इनकी माइग्रेशन सही से ना हो, हमारे पास एक गैंग्लियोनिक कोलन होता है जिसको हम हर्शस्प्रिंग डिजीज़ कहते हैं. फिर हमारे पास लेप्टोमेनिंजीज होते हैं. ये बेसिकली एरिकनॉइड और पिया मैटर बनाते हैं, नॉट द ड्यूरा. द ड्यूरा कम्स फ्रॉम द मीसोडर्म बट द एरिकनॉइड एंड पिया कम्स फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. तो बेसिकली न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो है वो बहुत ही डेलिकेट CNS के कवरिंग्स भी बनाता है. Peripheral nervous system. This is very, very important. This includes your cranial nerve ganglia, your dorsal root ganglia, and your autonomic ganglia, which includes your sympathetic and parasympathetic system. So always remember, CNS neural tube से आएगा और PNS neural crest cell से आएगा. फिर हमारे पास एड्रीनल मेडुला आ जाता है. एड्रीनल मेडुला में हमारे पास क्रोमैफिन सेल्स होते हैं, वो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन सेक्रीट करते हैं. दे फंक्शनली सिमिलर टू सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स. दैट्स व्हाई एड्रीनल मेडुला जो है वो एक सॉर्ट ऑफ मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लियन की तरह भी काम करता है. फिर हमारे पास शॉन सेल्स हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है कि शॉन सेल्स माइलिनेट करते हैं पेरिफेरल नर्व्स को, नॉट ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. ठीक है, वो CNS के हैं. हमारे पास जो शॉन सेल्स हैं वो पेरिफेरल नर्व्स को माइलिनेट करते हैं और ओलिगोडेंड्रोसाइट CNS को माइलिनेट करते हैं. आई विल रिपीट दिस अगेन. द शॉन सेल्स माइलिनेट पेरिफेरल नर्व्स, सो S to the P, okay, but not oligodendrocytes. वो CNS वालों को करते हैं. So if it's PNS myelin, always go for the Schwann cells which come from the neural crest cells. Then we have septums. ठीक है, septums कौन कौन से थे हमारे पास aorticopulmonary septum था और endocardial cushion था. Basically aorticopulmonary septum क्या करा था, aorta और pulmonary artery को embryologically separate करा था, राइट. आउटफ्लो ट्रैक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. और जब इसकी कोनोट्रंकल एनोमलीज आ रही थी तो हमारे पास टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट आ रहा था, परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस आ रहा था, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स आ रही थी. और एंडोकार्डियल कुशन्स क्या कर रहे थे, एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व्स बना रहे थे, जो आपके एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में वैल्व्स होते हैं, और सेप्टा ऑफ हार्ट बना रहे थे. ये भी न्यूरल क्रेस्ट और मीजोडर्म को मिला के आपके पास डिराइव होते हैं. और दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स के न्यूरल क्रेस्ट सेल का कोई डिफेक्ट हो तो कार्डियक सेप्टल डिफेक्ट्स भी होते हैं. फिर आई स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी, कुछ आई स्ट्रक्चर्स भी उससे बनते हैं. और फिर हम आ जाते हैं, ये जो आई स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये गलत है. ये बेसिकली एंडोकार्डियल कुशन्स हैं. ठीक है, आई स्ट्रक्चर्स हम पढ़ चुके हैं. ओके, फिर हम चलते हैं स्कल बोन्स पे. ठीक है, तो स्कल बोन्स बेसिकली क्रेनियोफेशियल स्केलेटन बनाते हैं. फेशियल बोन्स पार्ट ऑफ स्कल बेस, जॉ, मैक्सिला, मैंडिबल. तो इसीलिए क्लेफ्ट लिप, पैलेट और एबनॉर्मल फेशियल प्रोपोर्शंस होती हैं आपकी क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मैलिटीज़ में. ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा है कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो है वो पिगमेंट बनाते हैं, मेलानोसाइट्स बनाते हैं, टीथ डेंटिन बनाते हैं, ओडोंटोब्लास्ट के थ्रू PNS के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, हार्ट का आउटफ्लो ट्रैक्ट बनाते हैं, फेस और स्कल, एड्रीनल मेडुला. ठीक है, और हर्शस्प्रिंग कब होता है अगर कोई मिसिंग इंटेरिक गैंग्लिया हो. डिजॉर्ज कब होता है अगर कार्डियक और फेशियल डिफेक्ट्स हो जाएं. दिस इज अ न्यूरल क्रेस्ट सेल्स प्रॉब्लम विद द फेरेंजियल आर्च डिफेक्ट. वार्डनबर्ग हमने पढ़ा था. वार्डनबर्ग कब हो रहा था हमारे पास, पिगमेंट और हेयरिंग लॉस. तो ये मेलानोसाइट का प्रॉब्लम था, पिगमेंट और हेयरिंग लॉस था इसमें. न्यूरोब्लास्टोमा कब होता है हमारे पास, एड्रीनल मेडुला ट्यूमर होता है न्यूरोब्लास्टोमा बेसिकली. और कोनोट्रंकल डिफेक्ट्स हो रहे थे एओर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम. ये सेप्टम के इश्यूज़ में हमारे पास कोनोट्रंकल डिफेक्ट्स हो रहे थे. ठीक है, सो बेसिकली ये जो 3 काफ़ी कन्फ्यूजिंग पार्ट्स थे इनको हमने कवर कर लिया. अब हम मीजोडर्म पे चलते हैं, विच इज़ फेयरली वेरी easy to understand. Mesoderm आपका मसल, बोन, कनेक्टिव टिश्यू, सीरियस लाइनिंग्स ऑफ बॉडी कैविटीज़ जैसे कि पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, प्लूरा बनाते हैं, स्प्लीन बनाते हैं विच डेवलप्स विद इन द फोरगट mesentery, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स, लिम्फैटिक्स, ब्लड, वॉल ऑफ गट ट्यूब, अपर वजाइना, किडनीज, एड्रीनल कॉर्टेक्स, डर्मिस, टेस्टिस, ओवरीज, माइक्रोग्लाया. And notochord induces ectoderm to form neuroectoderm, which forms the neural plate. Its only post-natal derivative is the nucleus pulposus of the intervertebral disc. ये मैंने वीडियो में दिखाया था आपको. एंडोडर्म जो अंदर की गट ट्यूब एपिथेलियम बनाता है, which includes the anal canal above the pectinate line.
और इसके नीचे वाला हमने देखा था कि वो एक्टोडर्म बना रहा था. अब हमारे पास मोस्ट ऑफ यूरेथ्रा एंड लोअर वजाइना इज डिराइव्ड फ्रॉम द यूरोजेनिटल साइनस. देयर इज द luminal epithelial derivatives that include the lungs, liver, gallbladder, pancreas, eustachian tube, thymus, parathyroid, thyroid follicular and parafollicular cells. तो सारी इंटरनल लेयर जो है बॉडी की वो एंडोडर्म बना रही है और मीसोडर्म बीच की मिडिल मीट लेयर बना रही है. मीसोडर्मल डिफेक्ट्स के लिए हम वैक्टरल यूज़ करते हैं. इसमें बस वैक्टरल से हम देखते हैं वर्टिब्रल डिफेक्ट्स, एनल एट्रीजिया, कार्डियक डिफेक्ट, ट्रेक्यूएसोफेजियल फिस्टुला, रीनल डिफेक्ट्स और लिम्ब डिफेक्ट्स मिलते हैं हमें वैक्टरल में, विच इज़ बेसिकली अ मीसोडर्मल डिफेक्ट. आगे चल के हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स इन मॉर्फोजेनेसिस. ठीक है, इसके लिए मैं अपना फिग्मा खोल लेती हूँ. ओके, सबसे पहले हमारे पास एजेनेसिस आ जाता है, विच मीन्स कि कोई ऑर्गन है ही नहीं. ठीक है, एब्सेंट ऑर्गन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्राइमोर्डियल टिश्यू, जैसे रीनल एजेनेसिस है, किडनी यूरेटर है ही नहीं. एनेंसेफली है, न्यूरल ट्यूब नेवर फॉर्म्स अ क्रेनियल वॉल्ट. ठीक है, नेवर एग्जिस्टेड बेसिकली. फिर हमारे पास एप्लेजिया आ जाता है, ऑर्गन ही एब्सेंट है बट द ब्लू प्रिंट एग्जिस्टेड. एब्सेंट ऑर्गन डिस्पाइट अ प्रेजेंस ऑफ द प्राइमोरियल टिश्यू. थाइमिक एप्लेजिया ड्यू टू डिजॉर्डर सिंड्रोम और ये प्लास्टिक किडनी टाइनी फिब्रोटिक रेमनेंट मे एग्जिस्ट. ठीक है, एजेनेसिस कोई स्टार्टिंग मटेरियल ही नहीं था और एप्लेजिया ये कि स्टार्टिंग मटेरियल था, प्राइमोरियल टिश्यू था, लेकिन ग्रोथ फेल हो गई. हाइपोप्लेजिया ऑर्गन इज प्रेजेंट बट अंडर डेवलप्ड. जैसे हमने पढ़ा था कि पॉटर्स डिजीज़ में, पॉटर सिंड्रोम में पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो रहा था ड्यू टू ओलिगोहाइड्रोमनियोस, राइट. हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम भी होता है. द की फ्रेज हेयर इज दैट स्मॉल बट इट्स प्रेजेंट. देन वी हैव द डिस्ट्रप्शन. डिस्ट्रप्शन में जैसे नॉर्मल है लेकिन बाद में डिस्ट्रॉय हो गया. सेकेंडरी ब्रेकडाउन ऑफ प्रीवियस नॉर्मल टिश्यू और स्ट्रक्चर. कोई वैस्कुलर एक्सीडेंट हो गया, एमनियोटिक बैंड्स बन गए हैं, कोई टेरेटोजेनिक इफेक्ट था. एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम में ज़्यादातर लिम्ब एम्पुटेशन हो जाती हैं या इंटेस्टाइनल एट्रीजिया हो जाता है वैस्कुलर इनसाइट की वजह से. तो बेसिकली नॉर्मली स्टार्ट हुआ था लेकिन बाद में डैमेज हो गया. फिर हमारे पास मैकेनिकल स्क्विशिंग आ जाती है. एक्सट्रिंसिक डिस्ट्रप्शन ड्यू टू एनी मैकेनिकल फोर्स. इट अकर्स आफ्टर एम्ब्रियोनिक पीरियड, यूजुअली हैपेंस ड्यूरिंग फीटल पीरियड. हमारे पास ओलिगोहाइड्रोमनियोस की वजह से, यूट्राइन क्राउडिंग की वजह से या मल्टीपल जेस्टेशन की वजह से हो जाता है. तो इसमें नॉर्मल टिश्यू और एबनॉर्मल प्रेशर दोनों चीज़ें आपके की कॉन्सेप्ट में आ जाती हैं. ठीक है, क्लब फुट जैसे कि टैलेपीज एक्विनावेरस आपका एक एग्जाम्पल है. फ्लैटेंड फेसीज और जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट हियर. ठीक है, now another malformation is a blueprint error. This is an intrinsic development defect occurring during embryonic period week 3 to 8. There's a genetic or molecular signaling error here. The organ was never formed correctly. This will include a ventricle receptor defect, a cleft lip or palate. So a cleft lip or palate is basically a malformation, a blueprint error. Intrinsic development defect embryonic period में होती है. Neural tube defects, malformation always occur during organogenesis. Sequence basically includes one problem that leads to many problems. So the definition is a cascade of abnormalities resulting from a single initiating embryological event. The classic example would be a Potter sequence. The primary event would be oligohydramnios, which would lead to pulmonary hypoplasia, flattened face, limb deformity. So it's one cause that leads to multiple downstream effects.